السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تمام فکروں کو چھوڑ کے ایک فکر لگا لی، یعنی آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی فکرات کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جسے طرح طرح کی دنیا کی فکریں پریشان کیے رکھیں اور وہ آخرت کو بھولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کو بھولا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے وہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو دنیا کی فکر ہی لگی رہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اس کی محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور پھر بھی اس کو دنیا اتنی ملتی ہے جتنی اس کے لیے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ اور جس کی نیت آخرت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں کو اکٹھا کر دے گا، اس کے دل میں غنا بھر دے گا، اور دنیا خود چل کے اس کے پاس آ جائے گی۔ ان دونوں احادیث سے پتہ چلا کہ فکر کی جانے والی چیز اصل میں آخرت ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ جو شخص اس فکر میں مصروف رہے گا، اس کے دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ خود ہی نپٹ لے گا، خود ہی سدھار دے گا، کیونکہ آخرت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا وہ ایسا ہے کہ اس پر چلنے سے دنیا کے معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو اس کے برعکس کرتا ہے، آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے اور دنیا میں ہی لگا رہتا ہے، تو اس کو کبھی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ کچھ اور دیکھ سکے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور بس زندگی اسی طرح تمام ہو جاتی ہے۔ اس کے دماغ میں ہر وقت بس یہی فکرات حاوی رہتی ہیں، اور وہ بس انہی چکروں میں رہتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نقصان نہ ہو جائے، کسی طرح مجھے یہ چیز مل جائے، کسی طرح وہ حاصل ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا، نہ اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ وہ کن فکروں میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ باتیں آج اتنی ٹرو ہیں کیونکہ آج اتنی ساری فکرات ہیں جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو آکیپائی کیا ہوا ہے۔ ہر ٹائم ہمارے ذہن کسی نہ کسی فکر میں الجھے میں، ہر وہ لمحہ جو ہم فیس بک یا ٹک ٹاک یا یوٹیوب یا انسٹا پہ، جس پہ بھی سوشل میڈیا پہ ہم سکرول کرتے ہیں، ہر منٹ جو ہم لگا رہے ہیں اس کے بدلے کوئی کمائی کر رہا ہے، کوئی پیسہ بنا رہا ہے۔ ہمارا جو وقت ہے اس کو کوئی کیش کرا رہا ہے، ہم اپنا وقت دے رہے ہیں جس سے دوسرا نفع کما رہا ہے، اور دوسرے ہمارا وقت لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں روز بنا رہے ہیں۔ آپ ایک ویڈیو کھولیں، دوسری کھولیں، پھر اس کے بعد تیسری نکل آتی ہے، وہ کھول کے بیٹھ جائیں، تو ہم اس میں روزانہ دوسری فکرات کے علاوہ بہت سارا قیمتی اپنا وقت لوٹاتے جا رہے ہیں۔ ہمارا سرمایہ گھٹتا جا رہا ہے اور کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ ہمارا سرمایہ کیا اتنا ہی بیکار ہے کہ ہم اس کو پھینکتے پھر رہے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر وقت چلا گیا۔ اور اس وقت کے سرمایے کو جس نے کبھی واپس نہیں آنا، ہم یوں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اور انسان وہ مخلوق ہے جس کی ایک شروعات بھی ہے اور اس کا ایک اینڈ بھی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو الاول الآخر ہے،
यानी जब कोई नहीं था तब भी वो था, और जब कोई नहीं होगा तब भी होगा। तो उस इसी से उसके ये नाम है अल अव्वल अल आखिर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब ये जहान, ये कायनात, सोचें जरा, इमेजिन करें, ना कोई सितारा, ना कोई सैयारा, ना कोई आसमान, ना कोई जमीन, ना कोई मखलूक, कोई चीज भी नहीं थी, तब भी अल्लाह ताला था। और वो अल्लाह ताला को ही पता है कि उस वक्त और क्या और मखलूकात थी जो उसने पैदा की हुई थी। और इसी तरह कितना जमाना गुजरा हमें क्या पता, क्योंकि वो हमेशा से है और हमेशा तक बाकी है। इसी से उसका नाम अल बाकी भी डिराइव किया गया है, अल अव्वल और अल आखिर। तो ये वो दो नाम हैं जो सूरह हदीद में हमें मिलते हैं। इसी तरह लेकिन अल बाकी जो अल्लाह ताला का नाम है, जिसको बका है, यानी और किसी को बका नहीं है, वो है अल बाकी। यानी आप ये देखें कि हर चीज फना होने वाली है, लेकिन अल्लाह ताला की जात ऐसी है जिसको कोई जवाल नहीं, जिसके बाकी रहने की कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं है, वो हमेशा है। इवन जन्नत जहन्नुम, हम कहते हैं ना वो हमेशा बाकी रहेंगे, खालिदीन फीहा अबदा, उसमें रहने वाले भी बाकी रहेंगे। लेकिन एक वक्त वो था जब वो नहीं थे। जन्नत और जहन्नुम भी मखलूक हैं, पहले मौजूद नहीं थे, बाद में अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक किया। दूसरे ये कि उनके अपने अंदर कोई सलाहियत नहीं बाकी रहने की, अल्लाह ताला जब चाहे, जब तक चाहे उनको बाकी रखे। तो सिर्फ एक अल्लाह ताला की जात है जो हमेशा बाकी रहने वाली है, और जो अल अव्वल है और अल आखिर है, उसकी इब्तदा कोई नहीं। अब ये बात इंसान के जहन में आनी बहुत मुश्किल होती है। और किसी ने एक दफा मुझे कहा, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आती कि अल्लाह ताला कैसे है हमेशा से, हमेशा से कोई तो एक दिन होगा। मैंने कहा यही तो हमारा ईमान है कि वो अल अव्वल है और वो अल आखिर है, और कोई और दावा नहीं कर सकता किसी गैरुल्लाह के बारे में कि वो अल अव्वल और अल आखिर है। हर एक कभी ना कभी वजूद में आया, पैदा हुआ, और ये सारे शिर्क की जड़ काट देते हैं। नाम के कोई ऐसा है ही नहीं, कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि वो हमेशा से और हमेशा तक बाकी रहेगी, और जो सबसे पहले और सबसे आखिर है। तो जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की जात हमेशा से है, अल अव्वल वही है, और अल आखिर जब वो सबको फना कर देगा, क़यामत आ जाएगी, सबको खत्म कर देगा, तब भी वो कहेगा कोई है, कोई है अब, जो वो अपने आसमानों और जमीन को अपने हाथों में लपेट लेगा और फिर सवाल करेगा कहाँ हैं दुनिया के बादशाह, कहाँ हैं दुनिया के बड़े बड़े मुतकब्बिरीन। कोई जवाब नहीं आएगा। इवन फरिश्ते भी मौत के मुंह में जा चुके होंगे, उनको भी मौत आ गई होगी। तो जब कोई चीज भी नहीं थी उस वक्त भी वो था, और जब कोई नहीं होगा तब भी वो होगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में ये कलिमात भी कहा करते थे, और इनसे भी दुआएं कबूल होती हैं। अंतल अव्वलु फलैसा कबला का शई व अंतल आखिरु फलैसा बादा का शई। देखिए ये अल्लाह ताला की तारीफ के कलिमात है ना, कि अल्लाह ताला हम तुझ पे ऐसा ईमान रखते हैं जिससे पहले कोई नहीं, जिसके बाद कोई नहीं। यानी इंतहा, हमारा जहन चाहे वहां तक नहीं जा सकता क्योंकि हमारी अकल छोटी है, हमें इसको सोचने की भी जरूरत नहीं कि कैसे, नहीं, हम नहीं जानते, बस उसने बता दिया कि हुवल अव्वल हुवल आखिर, तो हम इसको जानते हैं। हर चीज के वजूद से पहले भी वो था और हर चीज के वजूद के बाद भी वो ही होगा। इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त भी था जबकि कुछ ना था, और उसका अर्श पानी पे था, और अल्लाह ताला ने हर चीज को लौहे महफूज में लिखा, और फिर आसमानों जमीन को पैदा फरमाया। यानी उससे भी पहले, आसमानों जमीन से भी पहले अल्लाह ताला था, मौजूद था। वो जात है जो मखलूक के फना होने के बाद भी बाकी रहेगी। और अल आखिर का मतलब ये नहीं है कि उसकी इंतहा और इख्तिताम कोई है, नहीं। और अल अव्वल का मतलब ये नहीं कि उसकी कोई इब्तदा हुई है, नहीं, नहीं, इब्तदा भी नहीं और इंतहा भी नहीं। यानी वजूद के एतबार से
कायनात में कोई भी उसके साथ इस चीज के अंदर मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ताला की हमने ये सिफत पढ़ी थी ना, अल अहद, वो अकेला है, और मैंने आपको बताया था यूनिक। तो इस यूनिकनेस में भी ये भी चीज उसकी यूनिक है कि वो अल अव्वल और अल आखिर है। अल्लाह अकबर। और सूरह हदीद में ये अव्वल और आखिर और अज़ाहिर अल बातिन, ये सारी सिफात अल्लाह ताला की आई हैं। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए जाते थे तो सोने से पहले उन सूरतों को पढ़ते थे जो सब्बाहा या युसब्बिहु से शुरू होती हैं, और फरमाते थे कि इनमें एक आयत है जो 1000 आयतों से अफजल है। और आपको पता है सूरह हदीद भी इसी से शुरू होती है, तस्बीह से ही, सब्बाहा से ही। अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म किया करते थे कि हम जब बिस्तर पर आराम करने के लिए जाएं तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्दीना रब्बना व रब्ब कुल्ली शैइन फालिकल हब्बी वन नवा व मुनजिलत तौराति वल इंजीली वल कुरआनी अऊदु बिका मिन शर्रि कुल्ली दी शर्रि अंत आखिजुम बिनासियतिही अंतल अव्वलु फलैसा क़बलक शै व अंतल आखिरु फलैसा बअदक शै वज़्ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़क शै वल बातिनु फलैसा दूनक शै। यहाँ तक अल्लाह ताला की तारीफ करके इक़्दि अन्नि दईन, ए अल्लाह मेरे कर्ज को अदा फरमा दे, व अगनीनी मिनल फ़क्र, और मुझे मोहताजी से बेपरवाह कर दे, गनी कर दे, मोहताज ना मैं हूं। तो इस दुआ में भी चारों सिफात हैं। ये दुआ मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला किसी का भी मोहताज ना करे और फकर और इनसे भी महफूज रखे, और अल्लाह ताला कर्ज से भी निजात दे दे। और अज़ाहिर कौन है? जो गालिब है, डोमिनेंट है, वो जो बातिन का उलट है। तो जाहिर भी है और अल बातिन, बातिन जो, बातिन का मतलब जैसे आप कहें कि बहुत करीब है, तो बहुत करीब तरीन है इंसान के और हर चीज के। और अल बातिन से ये भी मतलब है कि जो मखलूक की निगाहों से छुपा हुआ है, मखलूक की निगाह में आ नहीं सकता, पर्दे में है उसकी जात। और अल बातिन का मतलब ये भी है कि जो तमाम जो पर्दे में चीजें हैं, गैब की चीजें, उनको जानने वाला है, और हमारे भी बातिन को जानता है। और बातिन वो भी है जिसको महसूस नहीं किया जाता, लेकिन उसके वजूद को उसकी निशानियों से जान लिया जाता है। तो वो मखलूक से हिजाब में है, दुनिया में उसको कोई देख नहीं सकता। और जाहिर का मतलब क्या है? कि वो जाहिर है। जाहिर भी कैसे है? कि वो अपने एक्शंस की वजह से जाहिर है, जो वो इस दुनिया में करता है हमारे सामने, जो उसके अफ़ाल है। और उस अपनी जो मखलूक है उसके, उसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत नजर आती है। जो भी चीज उसकी खल्लाकी की है उसमें उसका हमें नजर आता है कि वो अज़ाहिर है इस तरह, लेकिन अल बातिन छुपा हुआ भी है। जाहिर है अपनी सारी जो चीजें हमारे इर्द गिर्द, जितना निजाम चल रहा है, जो चीजें उसने पैदा की हैं, उसमें यकीनी तौर पे ये बात है कि एक रब है जिसने ये सारा निजाम चलाया हुआ है और ये सब कुछ पैदा किया है। और लेकिन वो है छुपा हुआ, तो जाहिर भी है और बातिन भी है। वो छुपा हुआ भी है और सामने भी है। अगर कोई देखना चाहे कि उसकी निशानियों में से उसको जान सकता है। और इंसान इन नामों पर गौर करे, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। तो हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अगर कभी तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला के बारे में या दीन के हक होने के बारे में शैतान कोई वसवसा डालता है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने ये कहा कि वो कैसे है, तो हमेशा से ये तो हमारी अकल में नहीं आता, समझ नहीं आता, ये तो हमें कुछ भी नहीं। तो फिर फरमाया ये आयत, ये मैंने आपको बताया है ना कि सूरह हदीद में है, तो ये पढ़ लें आप सूरह हदीद की
नंबर 3 आयत, हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। तो इब्ने अब्बास ने ये नुस्खा बताया, क्योंकि शैतान जहन में डालता है कैसे ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो नहीं, ये हो सकता है, इसलिए कि वो अल्लाह है और उसका इसमें कोई हमसर नहीं। देखो, कोई ऐसा नहीं है कायनात में, और हर चीज को फना है, उसको फना नहीं है, वो अलबाकी है। इसी से यानी आगे आप एक और उसके नाम को समझे कि वो बाकी है। सब चले जाएंगे, सबको फना होगी, लेकिन उसको फना नहीं है। जैसे और जा रहे हैं, इसी तरह इंसान भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, इसका मालो मता चला जाएगा। कुल्लु शेइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज जो कुछ भी है उसको फना है, सिवाय उसके चेहरे के, उसकी जात के। तो दुनिया से हर एक को चले जाना है, और अल्लाह ताला की जात है जो बाकी है। तो जब भी इंसान को अम, कोई चीज के खदशात आए, या ये वो भूल जाए कि मैं क्यों आया हूं, और किसी चीज का गम लग जाए, हाय मेरे हाथ से क्यों गई है, तो बाकी तो कोई भी नहीं रहने वाली चीज, सिर्फ अल्लाह ताला की जात बाकी है। फिर इंसान को सोचना चाहिए कि मेरा क्या होगा, और फिर मेरे हाथ से जो चीज चली गई वो तो जाने वाली ही थी, कोई चीज भी बाकी रहने वाली नहीं। इंसान सोचे कि जो अल्लाह ताला ने पैदा किया उसने तो खत्म होना ही है, जो उसने ले लिया है वो तो कभी बाकी रहना ही नहीं था। आज मेरा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। अल्लाह ताला के नाम अल बाकी को भी आप जितना सोचेंगे ना, दुनिया के जाने का गम आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। अपने आप को इंसान कहे, जब किसी चीज की टेंशन हो, डिप्रेशन हो, इस तरह की चीजें हो, तो खुद को कहें कि ए इंसान, तू समझता है तू हमेशा बाकी रहेगा? नहीं, बल्कि जल्दी दुनिया तुम्हारा नाम जिंदों की लिस्ट से निकाल के मुर्दों की लिस्ट में लिख देगी। वालदैन जिंदा हुए तो वो रो लेंगे, दोस्त अहबाब याद करके फिर हमेशा के लिए भूल जाएंगे, बच्चे कुछ दिन याद करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन से भी ये नक्श महव हो जाएंगे। और ए इंसान, तेरी कब्र की बुलंदी को हमवार करके तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। तुम्हारा नाम मुर्दों में होगा तो तुम्हारा नाम मिट जाएगा। जो कब्र के तख्ते के ऊपर लिखा होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। चंद साल बाद लोग भूल भाल जाते हैं, कोई उन कब्रों को देखने तक नहीं आता। और 40-50 साल गुजरने के बाद तो ऐसे होता है जैसे कभी इंसान दुनिया में आया ही नहीं। तो फिर दुनिया की इतनी फिक्र क्यों? फिर अबदी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। दुनिया का सारा सरमाया अव्वल तो है ही कितना, और है ही बहुत थोड़ा, भी जितना है उसने भी खत्म हो जाना है। जबकि आखिरत हमेशा रहने वाली है, कब कभी खत्म होने वाली नहीं। वल आखिरतु खैरुम व अबका, अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर हम इस आरजी जिंदगी को इतनी तरजीह देते हैं, इस फानी के पीछे इस तरह पड़े हुए हैं कि आखिरत की हमेशा की जिंदगी को खराब करने पे तुले में। कोई हराम कमा रहा है और ये नहीं सोचता कि फानी दुनिया की चंद दिन की लग्जरी है, उसके बाद इसका हिसाब देना पड़ेगा। कोई वालदैन के मरने के बाद विरासत को तकसीम नहीं करता और समझता है कि इस मालो दौलत के साथ मैं हमेशा ही रहूंगा। कितना भूला हुआ है इंसान, ना इंसान कितने धोखे में है। कभी आपने तारीख उठा के देखा, कभी पीछे मुड़ के देखा, कहाँ गए जहांगीर बादशाह, नूर जहां, शाहजहां, बाबर, अकबर, वो बादशाह जिनके डंके बजते थे, जो राज करते थे ऐसी सल्तनत पे जहां उनके हुक्म पे गर्दनें उड़ा दी जाती थी, उनके कहने पे खजानों के मुंह खोल दिए जाते थे। वो जिधर से गुजरते थे लोग झुक झुक के सलामें करते थे।
वो जिधर जाते थे उनके आगे लोग बाअदब खड़े हो जाते थे, खामोश बाअदब। वो जिनको अपने दरबार में जगह दे देते थे वो उसको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे। वो जिनके लिए सजा का हुक्म दे देते थे उनके लिए दुनिया अंधेर हो जाती थी। वो जिसको इनाम से नवाजते थे उसके लिए बड़ी खुशबख्ती का मकाम समझा जाता था, और वो जिससे नाराज हो जाते थे उसको बड़ी बदबख्ती का दरवाजा समझा जाता था। आज किधर है वो? आलीशान मोहल्लात कई एकड़ों पे मुहित, जिनकी कनीजें और बांदियां इतनी होती थीं कि अलग उनके लिए हरम बनाए जाते थे। हटो बच्चों के शोर होते थे उनकी सवारियों के आगे, और जब वो ठाठ से अपने महलों से निकलते थे तो लोग उनकी एक झलक देखने को उमंड आते थे। आज कहाँ है वो? कहाँ गए वो बादशाह, कहाँ गई वो मलकाएं, वो जिल्ले हुम्मा, हिज मैजेस्टी कहाँ है? कभी नहीं सोचा आपने? कहीं उनकी एक आहट भी सुनाई देती है? जबकि वो तो बादशाह थे, तब भी आज गुम हो गए वो। उनके नामो निशान तक नजर नहीं आते। उनके महल खंडर बन चुके हैं, और उनके मकबरे वीरानी की तस्वीर है। वहां बैठ के लोगों को मैंने देखा है ताश खेलते हुए। उनकी बातें भी किताबों में अब गुम हो गई हैं, और दुनिया को तो उनके नाम भी अब भूलने लगे। कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए? 100 साल बाद तो किसी को ये भी पता नहीं होगा कि उनके नाम भी क्या थे। क्या ये इबरत काफी नहीं है हमारे लिए? किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की नूरजहां के मकबरे के बारे में। कहने लगा, दिन में यहाँ शब की सियाही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहां है। फिर आगे बड़ी लंबी नज़म है, उसमें आगे कहता है, ये आलम तन्हाई, ये दरिया का किनारा है तुझसे हसीना के लिए हू का नजारा। चौपाए जो घबराते हैं गर्मी से तो अक्सर आराम लिया करते हैं इस रोजे में जाकर। फिर आखिर में कहता है, जो कुछ थे कभी थे, मगर अब कुछ भी नहीं है, टूटे हुए पिंजर से पड़े जेरे जमी है। दुनिया का ये अंजाम है देख ए दिले नादां, हाँ भूल ना जाए तुझे ये मदफने वीरां। बाकी है ना वो बाग, ना वो कसर, ना वो ईवां, आराम के असबाब, ना वो ऐश का सामा। टूटा हुआ एक साहिल रावी पे मकान है, दिन को भी जहां शब की सियाही का समा है। फिर भी हम भूले में हैं। हम तो ना कोई शहजादियां हैं, ना हमारे शौहर कोई बादशाह हैं, ना हमारी कोई सल्तनत है, ना कोई हुकूमत है। छोटे छोटे मकानों में रहने वाले मकीन हैं। फिर भी हमारा नाज नखरा फखर बड़ाइयां, अल्लाह अकबर, आज हैं कल कुछ नहीं। सिर्फ एक लम्हे की बात है, यहां से वहां का सफर शुरू हो जाता है। एक जात है जिसको बढ़ाई है, जिसको बका है, जो बाकी है, जो आखिर है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, बाकी और कोई नहीं। अल्लाह अकबर। और हमने कितने शौक पाले में, कैसे हम भाग रहे हैं। दिन होता है और रात होती है और दुनिया के झमेले हमारे खत्म नहीं होते। हजरत उमर ने सईद बिन आमिर को हम्स का जब गवर्नर बनाया था, कि तो एक अरसे के बाद अहले हम्स जब हजरत उमर के पास आए तो आपने उनसे कहा अपने फुकरा के नाम लिख दो ताकि हम उनकी मदद कर सके। तो उन्होंने फुकरा के नाम लिख के पेश किए, तो उनमें एक नाम सईद बिन आमिर का था। तो हजरत उमर ने पूछा, कौन सईद बिन आमिर? उन्होंने कहा, वो जो हमारा अमीर है। पूछा, तुम्हारा अमीर फकीर है? कहा, हाँ, कई कई दिन गुजर जाते हैं उनके घर में आग नहीं जलती। हजरत उमर ये सुन के रोने लगे और 1000 दीनार उनके लिए भेजे। जब वो दीनार उनको मिले
तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी ने कहा क्या बात हुई, क्या अमीरुल मोमिनीन इंतकाल कर गए? उन्होंने फरमाया नहीं, इससे भी बड़ा मसला हो गया। परेशान होगी, क्या हो गया? कहते दुनिया मेरे पास आ गई है, फितने मेरे पास आ गए हैं और मुझ पे छाने लगे हैं, यानी ये माल तो फितना है। कहने लगी इसका तो हल ये है कि अल्लाह के रास्ते में दे दें। तो अगले दिन ही वो सारी रकम उन्होंने तकसीम कर दी। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अली बिन अबी तालिब ने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा, फिर फरमाया अल्लाह के बंदो, दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि ये ऐसा घर है जो बलाओं से घिरा हुआ है, जिसका एक दिन फना होना मशहूर है, जिसकी खास सिफत है कि ये बदअहदी करता है। इसमें जो कुछ है ना वो जवाल पजीर है। दुनिया अपनी जगह बदलती रहती है, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास। इसमें उतरने वाले इसके शर से बच नहीं सकते। तो दुनिया के ऐश में ना लगे रहना, इसकी फरावानी हमेशा नहीं रहती। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा दुनिया का रास्ता उन लोगों से अलग नहीं है जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी उम्रें तुमसे ज्यादा लंबी थी, जिनकी पकड़ तुमसे ज्यादा सख्त थी, जिन्होंने तुमसे ज्यादा शहर आबाद किए थे, जिनकी आबादी के निशान बहुत अरसे तक रहे, उनकी आवाजों का शोर बहुत जमाने तक रहा। लेकिन अब उनकी आवाजें खामोश हो चुकी हैं, बुझ चुकी हैं। अब इनके जिस्म बोसीदा हो चुके, उनके शहर खाली हो चुके, उनके निशानात मिट चुके। चूने वाले महल्लात, मुजय्यन तख्त, बिछे हुए गाऊ तकिए, अब इनकी जगह पत्थर मिल रहे हैं जो इनकी कब्रों में रखे हुए हैं और गारे से बनी हुए हैं। इनके कब्रों के सामने की जगह वीरान है, बेआबाद है। अल्लाह अकबर। इनकी कब्रों की जगह आबादी के करीब है, लेकिन इनमें रहने वाले बहुत दूर जा चुके हैं। उनके पास सिर्फ वहशत है और तन्हाई है। उनको आबादी से कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह अकबर। पहले ये लोग जिंदा थे, अब जा चुके। ऐश और लज्जत वाली जिंदगी गुजार के अब रेजा रेजा हो चुके। इनके मरने पर इनके दोस्तों को बहुत दुख हुआ, लेकिन इन्होंने मिट्टी में जाके बसेरा कर लिया और ऐसे सफर पर चले गए जहां से वापसी नहीं है। सोचें, जब इंसान यहां से चला जाएगा कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा इस दुनिया में, कभी नहीं। तो कहते हैं तुम भी एक दिन इनकी तरह कब्रिस्तान में अकेले रहोगे, वो सीधा हो जाओगे। तुम भी इस जगह के सुपुर्द कर दिए जाओगे और ये कब्र का अमानत खाना तुम्हें अपने अंदर समेट लेगा। तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तमाम काम खत्म हो जाएंगे और कब्रों के मुर्दे जिंदा करके खड़े कर दिए जाएंगे। जो कुछ दिलों में है वो सब निकाल के बाहर ले आया जाएगा और तुम्हें उस जलाल और दबदबे वाले रब के सामने अंदर की सारी बातें जाहिर करने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। फिर गुनाहों के डर से दिल उड़ने लग जाएंगे और तुम्हारे ऊपर से सारे पर्दे उठ जाएंगे, तुम्हारे सारे ऐब और राज जाहिर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो दुनिया की इस हर जो शय है, हर चीज में एक बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा नक्स है कि ये बाकी नहीं रहनी, ये फानी है, इसको बका नहीं है। सिर्फ अल्लाह अज्जा वजल अल बाकी है। तो फानी जिंदगी और इसके फानी ऐशो आराम में पड़ के उस आखरत को भूल जाना कितनी बेवकूफी है। क्योंकि ये तो चाहे भली गुजरे बुरी गुजरे, खुशी में गुजरे गम में गुजरे, इसने गुजर ही जाना है। लेकिन वो जिंदगी जब शुरू होगी तो वहां किसी चीज को जवाल नहीं होगा और उसने ना खत्म होना है। अल्लाह अकबर।
अमीरुल मोमिनीन महदी ने एक नया महल तामीर कराया तो खलीफा ने कहा, हर एक को इस महल की जियारत करने दी जाए। जो दोस्त होंगे वो देख के खुश होंगे, जो दुश्मन होंगे वो जलेंगे और इसके अंदर कोई ऐब ढूंढेंगे। तो फिर हम उनके ऐब ढूंढने के ऊपर उस नक्स को दूर करेंगे। तो एक फकीर आया, उसने कहा इस महल में दो नुक्स हैं। एक ये कि आप इसमें हमेशा नहीं रहेंगे, और दूसरा ये कि ये महल हमेशा नहीं रहेगा। खलीफा पे इस बात का इतना असर हुआ, उसने ये महल वक्फ कर दिया। तो जो यहाँ की चीजें हैं, इन्होंने भी खत्म हो जाना है। अब वो कितनी ही कीमती नजर आए, लेकिन एक दिन इस सोने चांदी पहाड़ जमीन दरिया दरख्त जितनी चीजें हैं, इनको भी एक ऐसे जलजले ने आ पकड़ना है कि ये भी खत्म हो जाएंगी। तो बाकी कौन है यहाँ पे? सिर्फ बाकी अल्लाह ताला की जात है। एक वो दिन भी होगा जब फरिश्तों की जान भी वो निकाल लेगा, उनको भी मौत आ जाएगी। और हत्ता के मौत के फरिश्ते को भी मौत आ जानी। लेकिन एक अल्लाह ताला की जात तब भी बाकी होगी। और इससे पता चलता है वो किसी का मोहताज नहीं, ना फरिश्तों का, ना इंसानों का, ना इस जमीन का, ना आसमान का, किसी चीज का भी नहीं। क्योंकि एक दिन सबको मौत आएगी, लेकिन वो फिर भी बाकी होगा। अल्लाह अकबर। तो इसलिए आखरत की फिक्र करें, और जो आखरत की फिक्र करने वाले होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनकी एक सिफत बयान की है कि उनको कभी अपनी नेकियां बड़ी नहीं लगती। वो तो हमेशा खौफ से लर्जा रहते हैं कि पता नहीं क्या क्या अमाल ऐसे हो गए कि जो हमारी नेकियां ना कहीं जाया हो जाए, कि पता नहीं हमारे यहाँ अमाल कबूल भी हुए कि नहीं, और पता नहीं गुनाह कितने हो गए हों कि हमारी आखरत जाया हो जाए। तो अल्लाह ताला के ये नाम हमें याद कराते हैं कि तुम बाकी नहीं हो, और तुम्हारे पास रहने वाली कोई चीज बाकी नहीं है। और तुम ना अव्वल नहीं हो कि तुम हमेशा से हो, और तुम आखिर भी नहीं हो कि तुम्हें हमेशा रहना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चले जाना है। जब चले जाएंगे तो हर चीज इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, बेहकीकत, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। चाहे हमारे पास कितना ही सोना चांदी बैंक अकाउंट जमीनें जायदादें औलाद और हर तरह के ऐशो आराम महल्लात जो मर्जी है, हमारे पास बड़ी से बड़ी हुकूमत भी है, तब भी वो हमारे लिए कौड़ियों बराबर भी नहीं होगी। उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं उन उसमें इन चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है। वहां पे ये चीजें कुछ भी काम आने वाली नहीं है। वहां पे इन चीजों का, इन चीजों ने साथ जाना ही नहीं है। तो फिर उनके ऊपर हम ऐसी इतना वक्त जाया करते हैं। हर एक को सोचना चाहिए, जो जुल्म कर रहा है किसी पे वो भी सोचे, आज जो मेरे पास जोर है, आज जो मेरे पास एक कुव्वत है, एक ताकत है, इसने भी बाकी नहीं रहना। ये जो अपनी जवानी पे इतना नाज है ना, कि ऐसे पैर मार मार के चलते हैं, इसने बाकी नहीं रहना। आज जो ये हुस्न है, इसको ही चमकाने तमकाने में इस चेहरे को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कभी टीके लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ओहो, इसने बाकी नहीं रहना। ये खत्म हो जाएगा, इसने मिट जाना है, रुल जाना है मट्टी में। इसके ऊपर इतना वक्त लगाते हो, और वो चीजें जो बाकी रहने वाली है उनको भूल जाते हो। तो फिर कौन सी चीज है जो बाकी रह गई? इल्म, इल्म के ऊपर बड़ा नाज है, ये दिमाग तो मट्टी हो जाएगा, इसने भी नहीं रहना। तो क्या बाकी रहेगा फिर? कुछ भी नहीं। चले जाना है यहाँ से। मत लोगों के ऊपर ज्यादतियां करो, मत उनके हक मारो, मत लोगों को तंग करो, मत किसी के लिए अजियत का बायस बनो, मत किसी की जिंदगी को हराम कर दो, कि उसका जीना हराम कर दो। मत किसी के ऊपर हावी होके दिखाओ कि मैं हूं, मुझे बड़ा समझो, मेरी मान के चलो। मत करो, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो। जिसको फना है वो क्या अकड़ दिखाता है?
اس کو فنا ہے، وہ کیا باتیں بولتا ہے، اس کو کیسے یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ وہ اللہ تعالی الباقی ہے، اس کے اس نام کو سمجھو اور آجزی اختیار کرو اپنی زندگی میں، اور جان لو کہ تم الآخر نہیں ہو، تمہیں چلے جانا ہے جیسے سب جا رہے ہیں۔ تم تو بڑے لامتناہی زمانے میں آنے والی ایک چھوٹی چھوٹی سی ڈیوریشن کے لیے، اتنی سی مدت کے لیے، ایک جیسے ایک لمحے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے لیے تم دنیا میں آئے ہو بس۔ اس ٹائم لائن کو دیکھو، اس میں تو تمہارا کہیں نشان بھی نہ ملے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ مٹ گئے، تو میرے آپ کے جیسوں کا کیا نشان باقی رہے گا؟ تو اس لیے اس کی فکر کرو، جس زندگی میں ہم نے داخل ہونا ہے، اور جلدی ہی داخل ہونا ہے، بہت دور نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو دور نظر آتی ہے، ہمیں پتہ ہے قریب ہے، ہم کہتے ہیں قریب ہے، تو وہ قریب ہی ہے، دور نہیں ہے۔ آج سے تیاری کرو گے تو کل تک کچھ پاؤ گے، ورنہ خالی ہاتھ ہوگے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم آج کا ذکر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی روئے زمین پہ یہ ذکر کر لے گا تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اتنا زبردست ذکر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے یہ ذکر، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر۔ اور یہ بھی کہ اس ذکر کو کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور یہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس طرح سے بھی پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن پڑھیں، یہ کہنا صدقہ بھی ہے، آپ کے جوڑوں کا صدقہ بھی ہو جاتا ہے اس کو کہنے سے۔ تو جو رب کو محبوب ہیں وہ کلمات کتنے عظیم ہوں گے۔ اور جس نے صبح شام 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے 100 حج کر لیے۔ اور جس نے صبح شام 100 دفعہ الحمدللہ پڑھا، ایسے ہے جس نے 100 غازیوں کو گھوڑوں پہ سوار کیا، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے لیے گھوڑے دے دیے۔ اور جس نے صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو ایسے ہے جیسے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کر دیے۔ اور جس نے صبح شام 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اس دن اس کے عمل سے زیادہ اچھا عمل کسی نے نہیں کیا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھ لیا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو کتنا آسان ہے زبان سے بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان بھی رکھ دیے جائیں تو یہ کلمہ بھاری ہے۔ اور جس نے یہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، 1000 نیکیاں اس کے لکھ لی جائیں گی، 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور الحمدللہ سے تو میں نے آپ کو بتایا تھا تملا المیزان، میزان بھر جاتا ہے۔ اور جو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ تو کلمات بڑے ہی شاندار ہیں۔ پھر کتنی دیر لگی مجھے سبحان اللہ کہنے میں، کتنی دیر لگی ہے مجھے نوٹ کریں، کتنا میرا وقت لگ گیا اس میں، کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے کہ ٹائم نہیں ہے؟ تو سحری بناتے بناتے، افطار بناتے بناتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، 100 تو ہو جائے گا۔ لیکن کیا کریں، ہم باتوں سے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی، کبھی یاد ہی نہیں رہتا۔ تو اس کو جاری رکھے، چل پھر رہے ہیں تو یہ تو کلمات ایسے نہیں کسی کو یاد کرنے پڑے، کوئی پیپر چاہیے کوئی کچھ چاہیے، یہ تو وہ کلمات ہیں کہ جو سب کو آتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسی بھی دعا بتانا چاہتی ہوں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی آپ کو مل جائے گی اس دعا سے۔ کتنی پیاری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی،
मैं सोचती हूँ हमें तो दुआ मांगनी भी नहीं आती और हमें कहना भी नहीं आता कि किस तरह से हम ऐसे कोई कलमात कह दें सारी भलाई हमें मिल जाए। तो ये इतनी प्यारी दुआ है। अ, अगर आपको जैसे बहुत सारी दुआएं नहीं भी आती होती हैं या कोई दुआएं भूल भी जाएं, तो आप ये दुआ तो जरूर ही कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही, अल्लाह मुझे खैर में से अता फरमा, सारी की सारी खैर मुझे दे दे, भलाइयां सारी की सारी दे दे। कुल कुल भलाइयां दे, आजिली ही व आजिली, जल्दी भी मिलने वाली और देर से भी। जल्दी क्या है? दुनिया। और देर से क्या है? आखरत। माँ आलिम तु मिनहु व मा लम आलम, जिनका मुझे पता है और जिनका मुझे नहीं पता। अब कितनी सारी भलाइयां हमारी जाने बला, हमें कहाँ पता है कि ये भी हमें मांगनी है। वो ये ना कि हमारा इल्म भी नाकिस है, हमारी सोच हमारी मांग भी तो थोड़ी ही है ना। तो आपने सारी ही मांग ली, क्योंकि आपने या तो आपको उसका इल्म होगा या नहीं इल्म होगा, दोनों ही मांग ली आपने, हर तरह की खैर मांग ली, और दुनिया और आखिरत की हर तरह की खैर मांग ली। और आऊदु बिका मिन शर्री कुल्ली ही, अब हमने शर से भी तो बचना है ना। शर क्या क्या हो सकता है? हर किस्म का शर, दुनिया और आखिरत का। आखिरत में अजाब है, जहन्नुम है, वहाँ की एंग्जाइटी है, वहाँ की परेशानी है, वहाँ पे पुल सिरात है, वहाँ पे मीज़ान है, उन सारी चीज़ों का खौफ है। और वहाँ के कितने सारे इशारे हैं जो आखिरत के हैं, कब्र का अजाब है। अ, और उठ के जाना, वहाँ पे खड़े होना, उसके अंदर क्या क्या आगे मरहले आते हैं। बहुत तरह के वहाँ पे शार हैं। दुनिया में भी बेशुमार शार हैं, कहीं बीमारियां हैं, कहीं हासिद है, कहीं फक्र फाका है, कहीं कुफर है, कहीं और ईमान के जाने का कोई डर है। ये सारे कई फितने हैं, दज्जाल का फितना है और फितने हैं। सारे शर कुल्ली ही, आजिली व आजिली, जो जल्दी उजलत और आजिली देर से। माँ आलिम तुम इन व मालम आलम, जो मुझे पता है और जो मुझे नहीं पता। या अल्लाह ताला मुझे क्या पता कौन कौन से इशारे और फितने हैं, और मुझे उनसे भी पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता है ना। अल्लाह मुझे नहीं भी पता, उनसे भी तू मुझे बचा लेना, मुझे अपनी पनाह में ले लेना, क्योंकि कोई बच नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला की मजबूत पनाह में ना आ जाए। सबसे पहले तो शैतान का शर है जो हमारे पीछे लगा हुआ है, फिर हमारे नफ्स के शरूर हैं, वो और कितनी तरह के शर हैं। अल्लाह हमसे बचा नहीं जाता जब तक कि तू ना हमें अपनी पनाह में ले ले। तो तू हमें बचा ले हर किस्म के शर से, हर किस्म की बुराई, हर किस्म का फितना इसके अंदर आ गया, हर किस्म के गुनाहों से भी बचना आ गया, क्योंकि वो भी शर है, जिनका मुझे पता है और जिनका नहीं पता। बहुत अच्छी दुआ जो हम मांग सकते हैं, और हमें दुनिया और आखिरत की हर भलाई इसमें मिल जाएगी, और हर दुनिया और आखिरत के हर शर से हम महफूज हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की पनाह से मजबूत पनाह किसी की नहीं हो सकती। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।